Good evening, everyone. Good evening, sir. Guys, today we are going to discuss topic percentage. You all are comfortable in basics of percentage, yes or no? And I think आप में से बहुत से लोगों ने तो ऑलरेडी परसेंटेज कवर भी किया हुआ है. Am I right? Sir. हाँ, yes. Yes, sir. अरे राघव, आप भी हैं इसमें? Yes, sir. So, anyone who are attending first time percentage session? Okay, Brinda first time. चलिए, now start the session. Sarthak also first time. So Sarthak, Hardik, what is percentage in your own words, in simple words? Sir, anything that is a fraction of the whole is a percentage. बेटा आप रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. परसेंटेज मीन्स पार्ट आउट ऑफ 100. परसेंटेज वर्ड इटसेल्फ कंप्लीट सब कुछ कह रहा है. पर एंड सेंट मीन्स 100. सो अ पार्ट आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज. इट मीन्स एक वैल्यू 100 के रिस्पेक्ट में कहाँ स्टैंड करती है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज. भाई आपके मार्क्स सपोज 300 आते हैं आउट ऑफ 500. You scored 300 out of 500 in an examination. So how to calculate percentage value? Multiply 100. So 500 के रिस्पेक्ट में 300 है, doesn't matter. 100 के रिस्पेक्ट में कहाँ स्टैंड करता है, तब आपको रिजल्ट पता चलता है. It is 60%. Okay. So now important concept is to convert percent value into fraction or fraction into percentage. So whenever data is given in terms of percentage and you have to calculate this value into fraction, in this position divide by 100. For example, 25% is percent value, and if you want to convert this value into fraction, so your result is 1 by 4. How it gets? It's 25 by 100, it means 1 by 4. Again, if you have fraction value and you want to convert this value into percentage, in this situation, multiply by 100. Suppose 1 by 2 is one fraction value, and you know 50% is the percent value for this fraction. And how to get this? Multiply by 100. Is it clear? So the basic concept of percentage to fraction and fraction to percentage is clear, everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, some important fraction values like 1 by 3. Yes, Raghav, 1 by 3 in Yes. terms of percentage is? Sir, 33.33. Absolutely right. 1 by 4 we just discussed किया, it is 25%. 25. 1 by 5 is? Sir, 20%. 1 by 6? Sir, 16.66. 16.66. 1 by 7? Sir, वो याद नहीं. बस खत्म हो गया डेटा. 14.28. 14.28. 1 by 8 is 12.5. 1 by 9 is 11.11. 1 by 11 is
9.09. Exactly, 9.09. 1 by 12. 8.33. Very good. 1 by 13. 7.69. तुम देख के तो नहीं बता रही बेटा? No, sir. अच्छा, चलिए खैर, अगर इतना भी याद है तो बहुत है। हाँ, अब कुछ वैल्यूज जो इनकी हेल्प से बनने वाली हैं, लाइक 1 by 3 is 33.33. सो इजीली आप कह सकते हैं 2 by 3 is 66.66. yes 66.66. Like 1 by 4 is 25. So 3 by 4 is 75. 75%. 1 by 5 is 20. So 2 by 5 is 40. 40. 4 by 5 is 80. 80. And 5 by 5 is 100. 5 by 5 is 100. 5 by 5 means 1. 1. Or 1 means 100. If 1 is 100, it means 2 is 200, 3 is 300, 4 is 400. Okay? चलिए खैर, अब मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर बेस्ड ऑन फ्रैक्शन. सो वन क्वेश्चन लाइक 50 by 7, इस फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करना है इन परसेंटेज. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 116.67%, convert this percent value into fraction. Yes, अभी जस्ट डिस्कस किया था बेसिक अप्रोच, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन. So everyone, please try as fast. And everyone, please on your cameras. सबके कैमरा ऑफ रहते हैं. अक्षय बेटा वाई मत पूछा करो. सर हम लेट के पढ़ रहे होते हैं. आप लेट के पढ़ रहे होते हैं, ये आपने बहुत गजब का रिस्पॉन्स दिया है बेटा. सर वैसे भी ऐसे गंदी तरीके से बैठे होते हैं. सर फिर उठ के बाल भाने पड़ते हैं तो टाइम लग जाता है. बेटा लेट के कौन पढ़ता है? सर मैं पढ़ता हूँ. हाँ मेरी आदत है. पेपर भी लेट के दोगे फिर? नो सर. अगर आप लेट के पढ़ रहे हैं तो उठ के बैठ जाइए और कैमरा ऑन करिए. ऐसा ऊपर हाई कमांड से ऑर्डर है. ओके. जिसने जिसने कैमरा ऑन नहीं किया उसको नेक्स्ट टाइम लिंक नहीं मिलेगा क्लास का. मैं सबका नोटिस कर रहा हूँ. लेट के पढ़ रहे हैं. So everyone got the answer? Sarthak got 73.5 and 7.6. Okay. चलिए देखिए डिस्कशन करते हैं फॉर दिस क्वेश्चन. Actually basic procedure when fraction data is given in percent value is required. So क्या करते हैं आप? Multiply by 100, it means 50 by 7 and multiply by 100. It means it is 5000 by 7, and after solving this one, you will get your answer in terms of percentage. And in easy way, because this is improper fraction. So improper fraction, it means this is 7 whole 1 by 7. Improper fraction को mixed fraction में convert करते हैं and can split this whole number and fraction. 7 and 1 by 7. So 7 in terms of percentage is 700 as discussed abhi. 1 is equal to 100%, 2 is equal to 200%, and 3 is equal to 300%. So obviously 7 is equal to 700%, and 1 by 7 is 14.28. Just club these values and get your answer. Correct answer is 714.28%. Is it clear, everyone?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And for the next question, again, the basic procedure is what? It is 116.67% and convert this value into fraction. To get this value into fraction, divide by 100, and after solving this one, you will get answer. But actually, this is a critical approach to solve this question. Otherwise, just break these values into 100% and 16.67. So 100% in terms of fraction is 1. और अभी discuss किया, this one is 1/6. So 1 plus 1/6, it is 7/6. I think clear, everyone? Yes, sir. Okay, so one another question of same type. (33/8) convert into percentage and 211.11 convert into fraction. Okay. तो फर्स्ट वाले का 412.5. Absolutely right. Good. सर एक बार ये बताने 11.111 किसका होता है? मैंने लिखा नहीं. It's 1/9, beta. 1/9. Okay, sir. सेकंड वाले का 19/9. 19/9. So if you convert this Yes, sir, मेरा भी यही fraction याद. into mixed fraction, so this one is 4 whole 1/8. 4 means 400 and 1/8 is 12.5. It means your final answer is 412.5 for the first one. And for next question, split this into 200% plus 11.11. 200 means 2 and 11.11 in terms of fraction is 1/9. So actually this is 19/9. I hope clear, everyone. Yes, sir. Anyone having any doubt? यस सर. सर Yes, ये sir. 33/8 एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे फिर से? कौन सा बेटा? 33/8. यस सर. This part is clear. This is 4 whole 1/8. Yes or no? यस सर. So 4 whole 1/8, it means 4 plus 1/8. 4 in terms of percentage is 400. हाँ. And 1/8 अभी just discuss किया, it is 12.5. So sum of these two value is 412.5. ओके सर, समझ गया. Now simple calculation of percentage. तो केवल फर्स्ट का आंसर बताइए. 22% of 1500. I think easily आप सॉल्व कर सकते हैं इसे. सर 330. 330. 330. राघव उठ के बैठ गए तुम? यस सर, मैंने वीडियो भी ऑन कर ली. नहीं नहीं ठीक है, दिख रहा था, तभी तो मैंने पूछा. $399, 19%. हाँ. So for first, everyone got it is. Shreya, answer for the first one is? Sir, 330 and the second one is 399. Okay. So one basic way to solve these type of question is 1500, 22% is required. So 22/100, it means 0, 0 cancel.
22 multiply 15, then finally get your answer. Otherwise, in different approach, see if you break this 22% into 20% plus 2%. Why? Because it is easy to calculate mentally both the data 20% and 22%. 1% of this value, पहले तो 10% की बात करें, so 10% of this value is 150. Yes or no? 10% of 1500 Yes, is sir. 150. Yes, So sir. obviously 20% means just double of 150, it means 300. And 1% of 1500 is 15. So 2% is just double of 15, it means 30. So it means your correct answer is 330. इस तरह से आप इसे mentally calculate कर सकते हैं. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए कोई भी डेटा है, लाइक मैं कहता हूं 10,000 है. So, इस फिगर के लिए 10% ऑब्वियसली 1000 होगा एंड 1% कितना होगा 100 होगा. अगर फिगर के एंड्स में 000 गिवन है, सो एक जीरो हटाने पर ये वैल्यू 10% रह गई, एक और हटा दिया तो ये वैल्यू केवल 1% रह गई. बट इसके लिए तो लास्ट में 0 होने चाहिए. अब सपोज आपके पास डेटा है 1111, so 10% of this value is 111.1 and 1% of this value is 11.11. It means unit के बाद point लगाया, so this value is 10%. Tens के बाद point लगाया, so this one is 1%. So it means किसी भी डेटा के रिस्पेक्ट में आप easily 10% and 1% calculate कर सकते हैं. Like for second question, 19% required था for 2100. So if you split this value into 20% minus 1%, देखिए 10 plus 9 में calculation ज़्यादा है. 20 minus 1 easily कर सकते हैं. 10% of this figure is 210. It means 20%, obviously 420. Double of 210, it means 420. And 1% subtract करना है. 1% of this figure is 21. So 420 minus 21, it is 399. I hope concept is clear. Yes, sir. सर वो आप डेसिमल वाला पार्ट बता सकते हो क्या एक बार, जो भी आप. For this one, यस सर. देखिए कोई भी फिगर है लाइक 2 3 4 5 है. 10% of this value is, आपको यूनिट के बाद पॉइंट प्लेस कर देना है. इट्स 234.5. आपको 1% की नीड है, पॉइंट और शिफ्ट कर दीजिए. दिस इज 23.45. इवन आपको 0.1% चाहिए, पॉइंट और शिफ्ट कर दीजिए. इट इज 2.345. ओके सर, क्लियर, थैंक यू. नाउ 26%. अब 26% कैसे ब्रेक होगा? 25 plus 1. 25 plus 1. Yes, absolutely. 30 minus 4. हाँ नहीं, 30 minus 4 से यस आंसर आएगा, बट उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है. आपको उस तरह से ब्रेक करना है कि इजीएस्ट वे में हो जाए. अब 25 plus 1%. 25% अभी जस्ट डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन कितना होता है? 25%, it means 1/4, and 1/4 of 84, it is 21. 21. It means ये आपको 25% मिल गया. एंड 1% का नीड और है. किसके रिस्पेक्ट में? 84 के रिस्पेक्ट में. अगर मेरे को 10% चाहिए होता, सो दिस वन इज 8.4, बट 1% चाहिए, पॉइंट को और शिफ्ट किया, दिस इज 0.84. सो ये है 25 एंड दिस इज 1%. सो फाइनली योर आंसर इज 21.84 विदाउट एनी कैलकुलेशन. I think clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा, लास्ट का आंसर क्या आ रहा है? 39.996. अच्छा, लास्ट के लिए जरा वेट करिए, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. 88% of 150. Do it fast. देखिए कोशिश करिए कि आप पेन का यूज कम से कम करें मिश्रा जी. 132. 132. ओके. देखिए जितना मेंटल कैलकुलेशन कर पाएंगे, कैलकुलेशन में उतना ही टाइम रिड्यूस कर पाएंगे. That has been my problem since the beginning. मेरे को बहुत जल्दी सुन के लिखने की आदत है, तो I am trying to practice that only because I can calculate पर mentally नहीं इतनी जल्दी.
एज सुन एज आई होल्ड द पेन मैं कर सकती हूँ, बट जैसे ही पेन छूट जाता है मेरा नंबर चलना बंद हो जाता है दिमाग में। चलिए देखिए 88%। अनुष्का कैसे ब्रेक सर करेंगे? मेरा तो 70 आ रहा है। हाँ, सर 12% वेट माइनस बेटा, वेट। हाँ, अनुष्का कैसे 80 ब्रेक plus करेंगे? 8%. 80 100 प्लस माइ या सर मैंने तो 100 माइनस 12 करा है। देखिए 100 माइनस 12 भी कर 80 प्लस 8 भी कर सकते हैं, 90 माइनस 2 भी कर सकते हैं, एंड 100 माइनस 12 भी कर सकते हैं, एज यू विश। बट मेरे को लगता है ये तीनों ही ठीक नहीं है, क्योंकि इन तीनों में कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। सो जब देखिए आपके पास एक डेटा कोई भी राउंड फिगर का वैल्यू है, सो इसे तुरंत रिवर्स कर दीजिए। इट मीन्स अपने को रिक्वायर्ड है 88% ऑफ 150, बट अगर आप इसे 150% ऑफ 88 में कन्वर्ट कर लें, अब ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी हो गया। व्हाई? बिकॉज 150% इट मीन्स 100% प्लस 50%। 100% ऑफ एनी फिगर इटसेल्फ वही वैल्यू है, एंड 50% तो किसी भी डेटा का करना सबसे इजी काम है, जस्ट हाफ करना है। तो योर रिजल्ट इज व्हाट? 132। क्लियर? अनुष्का, ये क्लियर हुआ? देखिए 88% आपको कैलकुलेट करना था, तो एक्चुअली 88 बाय 100 इंटू 150 करना था बेसिक वे में। अदरवाइज अगर आप मैं 150% ऑफ 88 कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मेरे को ये सॉल्व करना है। क्या ये पॉसिबल है कि दोनों में रिजल्ट चेंज आएगा? सेम ही आएगा ना। तो इट मीन्स अगर ये डेटा कंफर्ट जोन में नहीं लगता, तो आप इसे तुरंत रिवर्स भी कर सकते हैं, लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन। इसीलिए मैंने इसको होल्ड पे डाला था। 60% ऑफ दिस वैल्यू, ये अभी आपको ये 39 पॉइंट समथिंग दे रहा था। एग्जैक्ट आंसर कैसे मिलेगा अगर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 66.66% ऑफ 60 में? एंड अभी डिस्कस किया 66.66% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज 2/3, एंड 2/3 ऑफ 60 इज एग्जैक्टली 40। वो 39.99 भी करेक्ट है, बट करेक्ट आंसर इज 40। I hope clear everyone. Yes sir. Yes, sir. Okay, now try to calculate 26% of 96 through mental calculation. अभी पेन मत चलाइए, है ना, गलत होता है होने दीजिए। Yes, अनुभव। 19.96। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 33.6। 24.96। ओ सॉरी, हाँ 1/4 तो 24 हुआ ना। हाँ हाँ। अब देखिए अगर किसी डेटा का 1/4 करने में आप उतने कंफर्ट जोन में नहीं है, तो 1/4 का मीनिंग होता है हाफ का हाफ। सो पहले आप इसका हाफ कर दें, दिस इज 48, और इसका भी हाफ कर दिया, दिस वन इज 24। सो ये एक्चुअली 1/4 मिल गया। और 1% तो बहुत इजी है, जस्ट पॉइंट प्लेस करना है आपको आफ्टर टेंस, सो इट मीन्स 24.96। क्लियर एवरीवन? Yes sir. सर इसीलिए सर पेन एक बार चलाता फिर से हूँ, बता दो, मेंटल नहीं हुआ कैलकुलेशन में ये बिना गलती उसके। होती है। हाँ, एक मिनट, किसको प्रॉब्लम आया? सर मेंटली नहीं हो रहा, एक बार कैलकुलेटर से बता दो। कैलकुलेटर से बता दूं? फिर से बता दो एक या फिर बार। से बता दूं? एक मिनट बेटा। 26% एक्चुअली दिस इज 25 प्लस 1। यहाँ तो क्लियर है ना, ब्रेक करना है इसको। यस सर। 25% is 1/4, हम्म। and 1/4 of what? 1/4 of 96। 96। तो 96 का 1/4 24 होगा ना। यस सर। अच्छा और आ गया। 1% इट मीन्स 0.96। जस्ट इसे क्लब किया है, एंड योर आंसर इज 24.96। चलिए एक डेटा और लेते हैं सर। 26% ऑफ 144। देखिए एकदम से स्पीड नहीं आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से इंक्रीज करेगा। 37.44। एग्जैक्टली, वेरी गुड। द करेक्ट Sir आंसर 37.44. 37.44।
Why? Because again आपने इसे 25 47.44. Yes. 25 प्लस 1 में ब्रेक किया. 25 मीन्स अगेन 1/4. अब 1/4 देखिए, अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो पहले आपका इसका हाफ करेंगे. हाफ ऑफ दिस वैल्यू 72. एक्चुअली दिस इज 50%. और अगर ये 50% है तो इसका हाफ मीन्स 36. ये 25% आ गया. वृंदा, ये क्लियर है? Yes, sir. And 1% मीन्स व्हाट? इट इज 1.44. टेंस के बाद आपने पॉइंट प्लेस किया. इट मीन्स 1.44 इज द 1%. and club of these two value gets 37.44. ओके. Yes, sir. चलिए, ये तो अपन बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर वर्क कर रहे थे. अब धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस होगी. Now comes to basic question. Now the language says A is 150% of B. It means relation is given in terms of percentage between A and B. And with this relation आपको दो questions का आंसर चाहिए. First one is B is what percentage of A, and second one is B is what percentage less than A. दोनों में difference है. What percentage and what percentage less. So initially try to calculate with yourself. जय बेटा, सब कुछ क्लियर हो रहा है? Yes, sir. सर पहले वाले का 66.66%. Okay. यस सर, मेरा भी वही आ रहा है. Second 33.33. 33.33. So everyone got same for the first one 66.66 and for second 33.33. Amit, your answer is 50 for which one? Second one. Okay. चलिए अभी डिस्कस करते हैं. जिसको कोई भी प्रॉब्लम है वो समझ में आ जाएगा. देखिए A and B ये दो डिफरेंट डेटा है. कंपैरिजन गिवन है. A is 150% of B. So take this value B as 100. Why B as 100? Because comparison किससे है? B से है. तो जिससे कंपेयर करेंगे उसको ऑलवेज 100 पिक करेंगे जब भी डेटा परसेंटेज के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाएगा. रीजन बिकॉज परसेंटेज इज द पार्ट आउट ऑफ 100. नाउ अकॉर्डिंग टू डेटा A is 150%. सो 100 का 150% आप कैसे भी सॉल्व करें यही आता है ना. इट इज 150. सो A का वैल्यू आ गया 150. आप एज इट इज डेटा रख सकते हैं 150 और 100, या मे बी अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको 3 and 2 के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं. नाउ A एज 3 and B is 2. यहां तक क्लियर है? अभी केवल डेटा पिक किया है रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज B इज व्हाट परसेंटेज ऑफ A. तो देखिए जिसकी बात करेंगे ऑलवेज कम्स इन न्यूमरेटर, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे कम्स इन डिनोमिनेटर, एंड टू गेट द परसेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. इट मीन्स 3 का कितना परसेंट है. अब आप 200/3 कंप्लीटली सॉल्व करें. अदरवाइज इफ यू नो 1/3 इज 33.33, so 2/3 इज डेफिनेटली 66.66 विदाउट एनी कैलकुलेशन. तो अगर वो फ्रैक्शन की परसेंट वैल्यूज लर्न है तो आप विदाउट एनी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं. सो ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? यस सर. Yes. एंड फॉर द सेकेंड वन, अब देखिए बहुत माइनर सा चेंज है. व्हाट परसेंटेज एंड व्हाट परसेंटेज लेस में बहुत माइनर सा फर्क है केवल लैंग्वेज का. अभी पूछा है बी ए के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट कम है. तो जब भी कम या ज्यादा मोर और लेस पूछा जाए तो आपको डिफरेंस देखना होगा. कितना लेस है? 1 लेस है. सो जितना लेस है या मोर है ऑलवेज कम्स इन न्यूमरेटर. और किससे कम है? क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्लियरली गिवन है लेस देन A. इट मीन्स अपॉन में आ गया 3, एंड टू गेट परसेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, एंड 1/3 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 33.33. अमित, आई थिंक अभी क्लियर हो गया है. Yes, sir.
तो लेस देन और मोर देन के केस में कितना लेस और कितना मोर कम्स इन न्यूमरेटर, किसके रिस्पेक्ट में, ऑलवेज इन डिनोमिनेटर। और 100 से मल्टीप्लाई तो ऑलवेज हो रहा है बिकॉज आपको डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चाहिए। चलिए इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस और करिए। फर्स्ट इज बी इज, हाँ सर, हाँ जी, अगर यहाँ पे ये पूछा होता सपोज कि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए या ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, तो डिनोमिनेटर में 2 आता है या 3 आता 1 मिनट, क्या पूछा होता बेटा? है? ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। हाँ, ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी। तो हालांकि इस डेटा से ही क्लियर है कि आंसर 50% है, अदरवाइज आप डेटा अगर कंपेयर 50%। करेंगे तो 1 मोर है, बट किससे? साफ साफ लैंग्वेज में है बी से, इट मींस ऑब्वियसली 2 से। टू गेट 2 से ना, परसेंट वैल्यू योर रिजल्ट इज 50। ओके, ठीक है सर। नाउ योर क्वेश्चन इज बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए प्लस बी, एंड सेकेंड वन इज a plus b is what percentage more than a? क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज चेंज है, इसी डेटा के ऊपर है। तो फर्स्ट वाले का 40%। ओके, Yes, फर्स्ट sir. का 40, ठीक है, 40%. एब्सोल्युटली राइट। Second सर is 20%. देवाश, ये आंसर्स आपके किस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में है? देखिए बेटा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में तो सबसे पहले लैंग्वेज पर गौर करिए। इन दिस लैंग्वेज लेस देन और मोर देन कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा है व्हाट परसेंटेज। तो किसकी बात करी? बी की। सो बी इज 2 विच कम्स इन न्यूमरेटर। किसके रिस्पेक्ट में? ए प्लस बी, ऑब्वियसली 5 कम्स इन डिनोमिनेटर। एंड टू गेट परसेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, एंड यू नो 2 by 5 इज 40%। अदरवाइज आप कंप्लीटली 200 by 5 सॉल्व करेंगे तब भी आपको सेम मिलता है 40। तो सेकंड वाले का 166.667%। यस कितना सर, बेटा? मेरा भी यही आ रहा है 166.67। बेटा ए प्लस बी को कंपेयर किया है विद ए प्लस बी इज 5, ए इज 3। हाउ मच मोर? हाउ इट्स मच by 2 3 मोर। आप ये मोर भूल गए। अगर आपको ये 66%। बोला होता कि ए प्लस बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, तब आप करेक्ट है। बट अभी उसने पूछा कितना मोर, सो ऑब्वियसली 2 मोर विद रिस्पेक्ट टू, क्लियरली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 3 से। एंड 2 by 3 अभी 100 से मल्टीप्लाई करने का कोई नीड भी नहीं है, बिकॉज यू नो 2 by 3 इज 66.66। सर एक बार ये फिर से बता दो। सेकेंड पार्ट, यस सर. a plus b means 3 plus 2 it means 5। ए से इट मीन्स 3 से कितने परसेंट ज्यादा है? तो जब भी लेस देन एंड मोर देन चेक करेंगे, आप पहले न्यूमेरिक फिगर में देखेंगे कितना मोर है, तो ऑब्वियसली 2 मोर है, दैट वैल्यू कम्स इन न्यूमरेटर। और किससे ज्यादा है? तो लैंग्वेज में क्लियर है, किससे? ए से, तो ए अपॉन में आ गया डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में ऑलवेज वही वैल्यू आएगी जिससे कंपेयर किया गया है। सो कितना मोर अपॉन में किससे मोर, टू गेट परसेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो आप 200 by 3 कंप्लीटली सॉल्व करें, अदरवाइज इफ यू नो 2 by 3 is 66.66, तो डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। ओके सर. नाउ क्लियर? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सो डू इट केयरफुली। Two numbers are respectively 26 and 5% more than third number. पहले आपको डेटा पिक करना है on behalf of this data।
So first 20%, फर्स्ट 20%. एक मिनट, किसका आया है 20? सर 120 हाँ. What percent? Vrinda, your answer for the first one is? तो नहीं आया मेरा. देखिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 नंबर्स हैं, ये तो क्लियर है. फर्स्ट 2 को कंपेयर किया है विथ थर्ड नंबर. सो वृंदा, किसको 100 पिक करेंगे? थर्ड को. ऑब्वियसली थर्ड को, इट मीन्स ये 100 है. नाउ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट 2 नंबर्स 26 एंड 5% मोर है. इट मीन्स योर फर्स्ट नंबर इज 126. एब्सोल्युटली राइट एंड सेकेंड वन इज 105. यहां तक तो क्लियर है. Yes, sir. Now, first part says, first number is what percent of second? इस complete language में कहीं less than more than है? No, sir. नहीं. So directly, first number with respect to second number कितना percent है? It means out of 100. So 126, 105 का कितना percent है? यही तो calculate करना है. 21 6 Okay. 21 5 and if you know 6 by 5 is 120, आप डायरेक्टली लिखिए. Otherwise 600 by 5 is also 120. So I think first का concept तो सबको क्लियर है. यस सर. Yes, sir. Yes. So second वाला 16.67 16.67. Anyone got 20? चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला? सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट लेस है. अभी कंपैरिजन आ गया लेस और मोर का, तो आपको डिफरेंस देखना है. कितना लेस है? 21 लेस है. सो फॉर सेकेंड क्वेश्चन, कितना लेस है कम्स इन न्यूमरेटर. और किससे लेस है? इस डेटा में क्लियरली बोला है फर्स्ट से. इट मीन्स अपॉन में आया 126. Again, to get the percent value, multiply 100. So actually this is 1 by 6 and 1 by 6 is 16.67 or 66 कुछ भी कह सकते हैं. Now clear? Yes, sir. सर ये जो सेकंड स्टेप है हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 21 by 126 minus 1. 21 by 126 minus 1. minus 1. ये मैं समझा नहीं बेटा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? सर आई थिंक दिस फॉर्मूला विल शो कि जो सेकंड वैल्यू है वो कितनी कम है फर्स्ट वैल्यू से इन परसेंटेज टर्म्स. सो आई थिंक ये -16.67 आएगा इसका आंसर. -16.67%. हाँ, सेकंड वैल्यू 105 है ना और फर्स्ट की 126. हाँ नहीं वो ठीक है, बट जब परसेंटेज का कंपैरिजन होता है तो परसेंटेज का कंपैरिजन 100 के रिस्पेक्ट में होता है. बेटा जैसा अभी डिस्कस किया था इनिशियल लेवल पर कि आपके मार्क्स आउट ऑफ 500 अगर 300 है तो कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं? जब ये डेटा 100 है, अगर टोटल मार्क्स 100 कंसीडर किए जाएंगे तभी तो आप कह सकते हैं कि आपके मार्क्स 60% है. तो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितने परसेंट कम है? अगर ये फर्स्ट नंबर की वैल्यू 100 है तब तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इट इज 21, बट ये तो 126 है ना, तो 100 के रिस्पेक्ट में कितना है ये आपको चेक करना पड़ेगा. ठीक है सर. चलिए अभी सिंपल क्वेश्चन पर आ रहे हैं. 3 by 5 of a number is 25 more than 50% of same number, then find 90% of that number.
सो अगेन इसे आप थ्रू परसेंटेज मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मिस्टर एक्स का यूज करेंगे तो आई थिंक एक स्टेप बढ़ जाएगा। हार्दिक, आपने नंबर कैलकुलेट किया है, बट क्वेश्चन वांट टू नो 90% ऑफ दैट नंबर। सार्थक 90 सर कैसे? मेरा आ रहा है 225 225। ओके, Raghav got 225. Yes, Same. 225 is the correct one. So, Sarthak, I think discussion required. मेरा भी 225 ही आ रहा है। नो बिल्कुल सर, सही आ रहा है। 225 ही है। आप सब इंटेलिजेंट हो गए। मुझे समझ में नहीं आया। जय, ओके, देखिए देखिए, वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद मिस्टर एक्स, जैसा आप लोग लिखते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। सो 3/5 of x, 3/5 of a number, it means 3/5 of x. 50%, it means half, it means x by 2. Because 3/5, 25 more है with respect to 50%, it means difference of these two value is 25. यहां से सॉल्व करके पहले आपको x मिलेगा which is equal to 250. बट ये तो नंबर की वैल्यू हुई। इफ क्वेश्चन वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट नंबर, इट मींस 250, बट एक्चुअली 90% चाहिए। सो एट लास्ट आपको 90/100 और 9/10 ऑफ x, इट मींस 250 कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू 225। ये तो हो गया मिस्टर एक्स वाला प्रोसीजर। आई थिंक ये सबको क्लियर है। मिस्टर जय गॉट इट? यस अदरवाइज अगर आप ये कंप्लीट डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डील करेंगे, सो इफ यू नो 3/5 60%, अभी डिस्कस कर चुके हैं ना, 1/5 is 20, 2/5 40, it means 3/5 is 60. Okay, Yes, sir. so 60% यस with respect to 50%, percentage के terms में 10% more है, and according to this data it is equal to 25. So if 10% of any value is equal to 25, so definitely 100% is equal to 250. ये सीधा सीधा नंबर आ गया। Each and every value is 100% in itself, and because 90% की नीड थी, so 100% minus 10%, it means 225. ये थ्रू परसेंटेज सॉल्व हो गया। सर ये फिर से बता देते एक बार। Yes, sir. एक्चुअली उसने कहा था 3/5 of a number is 25 more with respect to 50% of that number. So because 3/5 को परसेंटेज में डील करने पर दिस इज 60%। अब 60% 50% से कितना ज्यादा है? 10% ज्यादा है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका न्यूमेरिक वैल्यू कितना है? 25. If 10% of any number is 25, so what is the value of 100%? Actually 10 times किया ना, तो ये भी 10 times हो गया, एंड 100% का मीनिंग हुआ कि वो नंबर आ गया। बट मेरे को नीड किसकी है? 90% की। 90 कैसे आएगा? 100% में से 10% सब्ट्रैक्ट करने पर, इट मीन्स 250 minus 25, दिस इज 225। नाउ क्लियर? यस सर। Yes, sir. Anyone having any doubt? नो सर। Suppose your question is 44% of any number is 606.50. So what is the value of 60% of that number? Yes, 44% given है, 66% required है। $808.75. अनुभव, योर आंसर? Yes, sir. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बहुत माइनर सा।
809. 809. अभी भी मिस्टेक है बेटा। 909. Yes, it's a 909. 909.75. 909. तो अब देखिए, बेसिक अप्रोच जैसे बच्चे सॉल्व करते हैं तो वो तो ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 606.50 द वैल्यू ऑफ 44%, 606.50, सो 1% के लिए डिवाइड बाय 44 एंड 66% मल्टीप्लाई बाय 66, तो डेफिनेटली यहाँ से तो आंसर आ जाएगा। बट मेरे को दिख रहा है क्लियरली कि 66% की नीड है, 44% गिवन है, इट मीन्स 22% का वैल्यू मेरे को और रिक्वायर्ड है, and 22% is just half of 44. It means just half of this value, which is 303.25. And after adding these two values, 66% is the sum of these two values, is 909.75. So solve करना important है, इससे ज्यादा कैसे solve किया ये important है। राघव, क्लियर बेटा? Yes, sir. बहुत बढ़िया, गेस्चर क्वेश्चन में तुम पढ़ाई कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Now your question says the price of sugar is increased by 10%. Then how much percent consumption should be decreased so that there is no extra expenditure? In these type of question, generally अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आप फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट हैं, to get the percent change value, result is R% upon 100 plus minus R% multiply 100. लाइक कि किसी कमोडिटी के प्राइस में कुछ चेंज किया तो कंजप्शन पर क्या इफेक्ट पड़ा, इन दैट सिचुएशन की एक्सपेंस रिमेन सेम। अपॉन में प्लस माइनस देखिए दोनों साइन यूज हो रहे हैं, तो अगर प्राइस इंक्रीज करता है देन टेक पॉजिटिव साइन, अगर डिक्रीज करता है तो नेगेटिव साइन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज आया 10% का, इट्स 10 अपॉन में 100 प्लस 10। वाई प्लस 10? बिकॉज प्राइस इंक्रीज किया है, and to get percent value multiply by 100. So actually this is 10 by 110 into 100. So 1 by 11, 1 by 11, it means your correct answer is 9.09%. It means अगर आप consumption में 9.09% reduce कर देंगे, decrease कर देंगे, then expense आपका same रहेगा। Otherwise यही question इसका reverse होता कि प्राइस 10% डिक्रीज किया, देन हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड बी इंक्रीज सो दैट देयर इज नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। उस पोजीशन पर न्यूमरेटर में अभी भी 10 आता, बट अभी डिनोमिनेटर में 90 आता, देन आपका आंसर 1 by 9, इट मीन्स 11.11 शो करता। सो ये थ्रू फॉर्मूला क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इजीली कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन, केवल डेटा चेंज किया। Sir, 25. 25, okay, 25. 25, sir. एग्जैक्टली। हार्दिक 1/4 ठीक है, बट अभी डेटा आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोलना है ना, तो आपको 25% बोलना होगा। एवरीवन गॉट सेम? Yes, sir. Okay. Now your next question is, initial sugar price is 40 rupee per kg and now it is 45 rupee per kg. So initial price 40 था, अब ये चेंज होकर हो गया 45 rupee per kg। ऑब्वियसली इंक्रीज कर गया,
So your question is how much % consumption should be decreased? So expenditure remains same. मैंने short में लिख दिया है mathematical language में. Answer for this question is I think कभी अरुण सर ने भी रिसेंटली परसेंटेज के क्लासेस लिए थे. Eleven point 11. 11.1. Okay. Yes, Raghav, your answer? सर मेरे को ये आ नहीं रहा. तुम लेट की पढ़ाई करते हो ना इसलिए तुम्हें नहीं आ रहा. सर मैं बैठ गया हूँ. आप बैठ गए हो ना, दिमाग तो लेटा हुआ है तुम्हारा. भाई सर 11.1%. 11.11. Okay. Anyone having any problem to solve this question? सर एक बार समझा दो प्लीज. Okay. So अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे. एक्चुअली फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला सेज इट्स R% अपॉन 100 प्लस माइनस R% मल्टीप्लाई 100. इन दिस फॉर्मूला देखिए साइन परसेंटेज का इन्वॉल्व हो रहा है ना. इट मीन्स अगर आपको डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है, लाइक प्राइस 10% का चेंज हुआ तब तो 10 आ गया, बट इस क्वेश्चन में तो परसेंटेज में नहीं गिवन है. इट मीन्स अगर आप फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं तो आप ध्यान से समझिएगा, इसके लिए आपको परसेंटेज की नीड है. कितना % चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो पहले आप कैलकुलेट करेंगे कि प्राइस इंक्रीज हुआ बाय 5 रुपीज. किस पर हुआ? ऑब्वियसली 40 पर हुआ. To get the % value, multiply by 100, and 5 by 40 it means 1 by 8, and 1 by 8 in terms of percentage अभी recently discuss किया था, it is 12.5. यहाँ तक क्लियर हुआ? सर ये हमने Sir. 40 क्यों लिखा है डिनोमिनेटर में? बेटा प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है तो 40 पर हुआ कि 45 पर हुआ? सर 40. इसीलिए 40 लिया है. ओके सर. इसीलिए कहते हैं मेरा लेट के नहीं पढ़ना चाहिए. तो हाँ, अभी आपके पास सिर्फ ये पता चला कि प्राइस इंक्रीज बाय 12.5%. अभी आंसर नहीं आया. आंसर तो कंजप्शन के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड था. अब अगर मैं फॉर्मूले पर जा रहा हूँ एंड यू नो कि 12.5% से प्राइस इंक्रीज कर गया, सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में आया 12.5, एंड बिकॉज प्राइस इंक्रीज किया है सो इन डिनोमिनेटर इट इज 100 प्लस 12.5. इट मीन्स 112.5 मल्टीप्लाई 100. और इसे फाइनली सॉल्व करने पर आपको 1/9 मिलता है. 1/9 मीन्स 11.1. सो अब ये काफी ह्यूज कैलकुलेशन हो गया, अदरवाइज अभी शॉर्टकट पर डिस्कस करेंगे, बट ये तो हो गया फॉर्मूला कॉन्सेप्ट. तो फॉर्मूले पर अगर डिपेंडेंट है तो उसके लिए आपको परसेंटेज की नीड है. अब उसके लिए पहले आपने परसेंटेज का कैलकुलेशन किया कि कितने % से ये प्राइस इंक्रीज किया, देन फॉर्मूला यूज किया. अदरवाइज शॉर्टकट पर बात करते हैं. देखिए पहले तो ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ. जैसे इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात करें जो प्रीवियसली आपने सॉल्व किया था कि प्राइस इंक्रीज किया 10% से. इट मीन्स अगर इनिशियल प्राइस आपका 100 रुपीज है, सो 10% इंक्रीज के बाद ऑब्वियसली 110 हो जाएगा. अब ऑब्वियसली अगर ये प्राइस इंक्रीज कर जाएगा तो कंजप्शन को तो रिड्यूस करना है, तभी एक्सपेंस कंट्रोल होगा. दूसरा तरीका यह है कि इस इंक्रीज प्राइस को अगर अपने ओरिजिनल प्राइस पर वापस ले आए तब भी आपका एक्सपेंस कंट्रोल रहेगा. इट मीन्स इस न्यू प्राइस को ओरिजिनल प्राइस पर वापस लाने में कितना चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सेम आंसर कंजप्शन का आता है. तो इट मीन्स एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 110 से 100 बनाना है, इसके लिए कितने % के डिक्रीज की नीड है? 110 से 100 करने का मीनिंग है 10 डिक्रीज किया, विच कम्स इन न्यूमरेटर. और किस पर डिक्रीज किया? ऑब्वियसली 110 पर, कम्स इन डिनोमिनेटर, एंड टू गेट % वैल्यू मल्टीप्लाई 100. देखिए एज इट इज सेम चीज ये फॉर्मूला कह रहा था.
इट मीन्स फॉर्मूले के पीछे का कंसेप्ट यही है। अब आपको इस क्वेश्चन में भी कोई नीड नहीं है कि मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूं पहले प्राइस का और फिर फॉर्मूला यूज करूं। क्वेश्चन कहता है प्राइस 40 से 45 हो गया, आपको कंजप्शन में कितना चेंज आया ये चेक करने के लिए केवल इसके ओरिजिनल प्राइस पर वापस ले जाना है। इट मीन्स प्राइस को वापस 45 से 40 करना है। इसके लिए डिक्रीज कितना करना है, 5 का। ऑब्वियसली किस पर, 45 पर। दिस इज 1/9 and 1/9 in terms of percentage is 11.11। वही आंसर आ रहा था इतना सारा स्टोरी सॉल्व करके। क्लियर एवरीवन? यस सर। सर एक बार फिर से बताना। सिंपल फंडा है बेटा कि ओरिजिनल प्राइस पर वापस आना है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है प्राइस 40 से 45 हो गया, अपने को 45 से अपने ओरिजिनल प्राइस पर इट मीन्स 40 पर आना है। सो फ्रॉम 45 टू 40 5 डिक्रीज करना पड़ेगा। और 5 किस पर डिक्रीज करना है, डिक्रीज तो ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू पर करेंगे ना। सो अपॉन में 45 एंड टू गेट परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज 1/9, 1/9 मीन्स 11.11। सर मेरा एक डाउट है एक्चुअली, हमको कंजम्पशन के रिस्पेक्ट में निकालना था ना, तो हम क्वांटिटी के नंबर्स क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? अभी देखिए क्लियर हो जाएगा। लाइक मैं अपन कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज एक्सपेंस, आप जानते हैं एक्सपेंस इज व्हाट इट इज, प्राइस इनटू कंजप्शन। यस सर। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन था, अगर प्रीवियस क्वेश्चन वाला डेटा आप ले लेते हैं जिसमें कि प्राइस को बोला था 10% से इंक्रीज किया था, तो 10% से इंक्रीज करने पर आपका रिजल्ट क्या आया था, इट इज 9.09। यस सर। हाँ, अभी यही यूज करते हैं इसमें। तो अपने पास अभी कोई डेटा नहीं है। लेट्स से प्राइस इज 10 रुपी पर केजी एंड कंजप्शन इज 10 kg। इन दिस पोजीशन योर एक्सपेंस वैल्यू इज 100, यस और नो? यस सर। प्राइस को 10% से इंक्रीज किया, इन दिस पोजीशन योर प्राइस इज 11 रुपीज। ठीक है। कंजप्शन की नीड है, एक्सपेंस रिमेन सेम, so your consumption is what it is, 100/11। एक्चुअली वही आ गया 1/11 into 100 which is equal to 9.09। गॉट इट? अच्छा, गॉट इट सर, गॉट इट। एक्सक्यूज मी सर, यस। सब बुक में एक फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, तो वो किस सिचुएशन में यूज होता है? हाँ अभी वो आएगा, वेट, आज ही की क्लास में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए। वो एक्चुअली 2 सक्सेसिव चेंजेस के लिए है। यस, यहीं पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में ही। Now the question says if a number is increased by 20% then decreased by 30%, find percentage change in that number। अभी लास्ट क्वेश्चंस में आपने केवल एक चेंजेस किया, क्या किया, केवल शुगर के प्राइस में चेंज किया। अब क्या कर रहे हैं, 2 चेंजेस कर रहे हैं। इवन अगर प्रीवियस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में वो क्वेश्चन में प्राइस में भी चेंज गिवन हो और कंजप्शन में भी चेंज गिवन हो, देन हाउ मच परसेंट चेंज इन एक्सपेंडिचर, तब आप जो फॉर्मूला बोल रहे हैं ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 ये यूज हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर एक नहीं 2 चेंजेस हो रहे हैं। इसका सर क्वेश्चन क्लियर हो गया? 16%। कितना बेटा? 16। 16, okay। So whenever 2 successive changes are involved, then your formula is, and actually in detail ये formula है plus minus x plus minus y plus minus x plus minus y divide by 100। मैंने हर जगह प्लस माइनस इसलिए यूज किया है, इंक्रीज टेक पॉजिटिव साइन, डिक्रीज टेक नेगेटिव साइन। So initially 20% increase किया, it means it is plus 20. Then decrease by 30%, it is minus 30. Again plus 20 minus 30. Sign के साथ चलेंगे and divide by 100. So from this part you get minus 10 plus minus minus 3 to just 6. So finally you got 16% with negative sign. तो इसका मीनिंग केवल ये है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है। बाय हाउ मच परसेंट? 16%। क्लियर? यस सर। यस। यस सर। और कोई नीड नहीं है कि अपन फॉर्मूले पर डिपेंडेंट रहे।
आप इस तरह से भी पिक कर सकते हैं, लेट द नंबर बी 100। वाई 100, देखिए x नहीं पिक करेंगे, ये x बड़ी खराब चीज है, मैं वो x से थोड़ा दूर रहता हूँ। सो x की बजाय अगर आप 100 पिक करते हैं, बिकॉज डेटा परसेंटेज में गिवन है, तो परसेंटेज इज द पार्ट आउट ऑफ 100। इनिशियली 20% इंक्रीज किया, आफ्टर 20% इंक्रीज 100 इज कन्वर्टेड टू 120 एंड देन 30% डिक्रीज। सो 30% डिक्रीज किस पर एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियसली 120 पर। 10% of this value is 12, so 30% is 36, and 36 decrease in this 120, so your result is 84. Initial value is 100, now it is 84, it means it is decreased by 16%. अभी आंसर डायरेक्टली परसेंटेज में आ गया, बिकॉज आप डेटा 100 ले रहे हैं, सो 100 के रिस्पेक्ट में जो चेंज होगा वो डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ जाता है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। हाँ, अब बट हाँ, ये फॉर्मूला जरूर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से है कि जब तक आप परसेंटेज के कैलकुलेशन में कंफर्टेबल नहीं है, तब तक तो आप इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, बिकॉज अभी तो डेटा ये 20 एंड 30 बड़ा इजी था। अदरवाइज ये डेटा अगर क्रिटिकल आ गया तो फिर आपको फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल लगेगा, क्योंकि क्रिटिकल परसेंटेज के सिचुएशन पर आपको 2 बार परसेंटेज कैलकुलेट करने से बेहतर था कि आप फॉर्मूला यूज करें। एंड इस फॉर्मूले के साथ में एक नोट भी लिखिए, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर, नोट डाल लीजिए इसमें, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर सर्कल, स्क्वायर, rectangle and right angle triangle. Circle, square, rectangle and right angle triangle to find the change in area. इन स्ट्रक्चर्स के रिस्पेक्ट में अगर आपको एरिया का चेंजेस रिक्वायर्ड है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लाइक कि आपको स्पेशली रेक्टेंगल के केस में क्वेश्चन जनरेट होते हैं, बिकॉज एरिया इज L into B. If in any question length और breadth के changes given है, how much % change in area, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सर एक डाउट था, हाँ जी, अगर 3 बार चेंजेस होंगे तो कैसे करेंगे? 3 बार चेंजेस होंगे तो अगर आपको फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड होना है, तो पहले 2 चेंज को क्लब कर लो, उसके बाद तीसरे को उसके रिजल्ट के साथ क्लब कर लो। अदरवाइज अगर सपोज मैंने आपसे कहा कि पहले 10% इंक्रीज किया, देन 20% इंक्रीज किया, अगेन 10% इंक्रीज किया, तो मेरे को नहीं लगता कि फिर फॉर्मूले की नीड है। आप सीधा सीधा 100 के रिस्पेक्ट में लेकर चलिए कि 100 से 10% इंक्रीज किया, इट मीन्स 110 हुआ। नाउ 20% इंक्रीज हुआ, सो 10% ऑफ दिस वैल्यू इज 11, सो 20% मीन्स 22, 22 ऐड किया, दिस इज 132। अगेन 10% इंक्रीज किया, सो 10% ऑफ दिस फिगर इज 13.2, 13.2 आपने इसमें प्लस किया, so 13, it means 10 plus किया, it means 142, 145.2. so overall आपने अब आप क्लियरली देख सकते हैं इट्स इंक्रीज बाय 45.2। तो कोई नीड नहीं है कि आप फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंडेंट रहे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने फॉर्मूला लिखा है ऊपर यस, एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में, सो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में एक्स एंड वाई है उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। न्यूमरेटर में लास्ट में, यस सर। हाँ यहाँ मल्टीप्लाई है। ओके। सर नहीं आया था, वो क्या फॉर्मूले के हिसाब से कैसे करेंगे? ये तो मेरे को आ आपका? गया 100% के हिसाब से, अगर 3 बार चेंज होगा, बट हाँ, फॉर्मूले में कैसे करेंगे? फॉर्मूले के हिसाब से लाइक आपने पहले 10 और 20 को क्लब किया, एक मिनट, जैसे आपके 3 चेंजेस थे 10, 20 एंड अगेन 10, है ना? तो आपने दोनों में अगर सब में इंक्रीज कर रहे हैं, सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं, सो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो पहले आपने फाइनल ये चेंज निकाला, सो दिस इज 30 प्लस 2, इट मीन्स 32%। गॉट इट? यस सर, एंड फिर इसके एंड हाँ, अब 10% 32 को क्लब करेंगे 10 के साथ में, इट मीन्स 32 प्लस 10 प्लस 32 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, फिर रिजल्ट मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। ओके ओके, सर। सो अभी तक जितना किया उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब ये सारे क्वेश्चंस एब्सोल्युटली राइट होंगे, क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, अपन बेसिक्स कवर कर रहे हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हैं। ए इज 50% मोर देन बी, सो बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए? B, 33.33. Yes, the correct one is Sir, 33. 33.33. Any discussion required for this question or clear to everyone? So clear. Okay. Again, a very simple question. The answer is 66. Sir, 66. So 66. 66. Discussion required for this question? No, sir. सर सार्थक Sir, जी। सर एक ये बार बता दो। हाँ हाँ, डिस्कस कर रहे हैं। A student scored 55% in 8 papers of 100 marks each. It means maximum marks 800. 100 marks each and 8 papers, it means maximum marks 800. And a student ने स्कोर किया 55%. अब आप या तो 55% कैलकुलेट करिए, अदरवाइज मेंटली भी कर सकते हैं। 50 + 5, so 50% means 400, just half of this value, and 5% is 40, it means 440, which is equal to 55% of this data. यहां तक क्लियर है सार्थक? Yes, sir. Now he scored 15% of his total marks in English. So how much does he score in English? So उसका स्कोर तो केवल 440 का है, और इसके रिस्पेक्ट में आपको 15% कैलकुलेट करना है। 15% मीन्स 10% + 5%. So 10% is 44. So obviously 5% 22, and sum of these two values 66. आप सीधा भी कैलकुलेट कर सकते थे 15%, अदरवाइज इस तरह से आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ योर करेक्ट आंसर इज 66. सार्थक क्लियर? Yes, sir. Again a simple question. अब कैलकुलेशन कैसे डील करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा डेटा गिवन है, B is 20% more than A, C is 25% more than B, and D is 33.33% more than C. And at last D का वैल्यू गिवन है, A का वैल्यू रिक्वायर्ड है। Okay, Amit got the correct one. Good. राघव, तुमसे तो आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। सर वो मैंने एक चीज गलत पढ़ ली थी तो दोबारा करना पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं स्ट्रेट बैठ के पढ़ना चाहिए।
वहाँ पे सार्थक का भी करेक्ट है, गुड. So the correct answer for this question is 1234.15. Anyone having problem? सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए. Okay, now A, B, C and D ये 4 इन्वॉल्व है इसमें. इनिशियली B को A से कंपेयर किया है. So it starts with compare to A. So take this value as a 100%. You know each and every value is 100% in itself. Now B is 20% more. So 20% more, it means clearly your B is 120%. Anubhav, yes? Now C Yes, sir. is 25% more. अब देखिए 25% मोर का मीनिंग ये नहीं है कि आपने इसको ऐड करके सीधा 145 कर दिया, ये गड़बड़ हो जाएगा. बिकॉज अभी ये डेटा 100 नहीं है, आपको इसका 25% कैलकुलेट करना है. 25% मीन्स 1/4 and 1/4 of 30%. 120 it means 30. 150. So actually this is 150. So now C तक कन्वर्ट होते हुए ये वैल्यू 150 में कन्वर्ट हो गई. यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. And D is 33.33% more. So 33.33% means 1/3. 1/3. 1/3 of this figure is 50 more. It means actually 200. B is equal to 200. तो And हाफ हो जाएगा. because 200% का value given है 2468.30 and 100% A का value need है just half चाहिए ना. So half of this figure is 1234.15. ठीक है सर. Clear everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Again, a simple practice question. A student has to secure minimum 35% marks to pass in an examination. If he gets 200 marks and failed by 10 marks, then the maximum marks is 600. exactly 600. Yes, sir. Sir, 600. 600, okay. Everyone got same? Yes, So can you please explain? Beta 35% to pass this examination in terms of percentage ये data given है. And exactly marks के terms में after scoring 200 marks, you still fail by 10 marks. It means your passing marks in terms of numeric value is 210. So 35% is equal to 210. ये step clear है? Yes. So 100% की value की need है. So 6 times 210 होता है. So 1% is 6. So 100% is 600. And 100% means maximum marks. Okay. Yes, sir. Again, a basic question. So 60 students and 6 teachers. Each student got suite that are 20% of total number of students, and each teacher got suite that are 25% of total number of students. So how many suites were there? I think 810. 810. Yes, 810. correct. The answer is 810. 60 students and 6 teachers. Each student got 20% of total number of
each student got sweet that are 20% of total number of students. It means everyone got 12 sweets. 20% of total 60 is 12. So this is 720. And each teacher got 25% of total number of students. So 25% of this data, it means 1/4 is 15. This is 90. And sum of these two values is 810. So I think बहुत सारा बेसिक कर सर लिया. ये 15 कहाँ से आया है? कौन सा 15? सर ये 6 into 15 वाला. ये बेटा जादू से आया है. Actually उसने बोला 25% of total number of students. So 25% means 1/4 and 1/4 of 60, which is 15. ओके सर. ओके स्ट्रेट बैठ के पढ़ा करो, बिल्कुल क्लियर रहेगा दिमाग. सर नहीं, वो मैंने गलती से ना नंबर ऑफ टीचर्स से कर दिया मल्टीप्लाई, मैं इसलिए समझ गड़बड़ गया, हो गया. तुम्हारी प्रॉब्लम ही वही है, तुम लेट के पढ़ते हो बेटा. चलिए, नाउ कम्स टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इम्पोर्टेंट का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि बेटा ये टफ क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन है, बट हाँ बिल्कुल बेसिक से थोड़ा ऊपर चल रहे हैं. Now your question says a person spent 50% of his income. 50% of his income. If his income increased by 30% and expenditure by 20%, find percentage change in his saving. So in this position, जब income expense और saving के ऊपर question है, so you know income minus expense that is equal to saving. अब चूंकि कंपैरिजन गिवन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, फर्स्ट स्टेटमेंट में स्पेंड कर रहा है 50% ऑफ हिज इनकम. डेटा नहीं गिवन है, सारा कंपैरिजन गिवन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो ऑब्वियसली अब आपको इस पोजीशन पर इनकम का वैल्यू 100 कंसीडर करना है फॉर इजी कैलकुलेशन. व्हाई 100? बिकॉज डेटा परसेंटेज में है, परसेंटेज इज अ पार्ट आउट ऑफ 100. 50% स्पेंड किया, इट मीन्स 50 रुपीज स्पेंड किए. सो इन दिस पोजीशन सेविंग का वैल्यू भी 50 हो रहा है. यहां तक क्लियर है सबको? Yes, यस. sir. ओके, नाउ अब केवल लैंग्वेज फॉलो करना है. सो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, इनकम इंक्रीज बाय 30%. इट मीन्स योर न्यू इनकम इज 130. एक्सपेंस ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%. 20% इंक्रीज का मीनिंग 70 नहीं हो जाएगा, ये 60 होगा. एक्चुअली 20% 50 का है एंड 10% ऑफ 50 इज 5. सो 20% मीन्स 10 रुपीज से इंक्रीज किया एक्सपेंस. सो योर सेविंग इज income minus expense. So 130 minus 60, it means 70. Your previous saving is 50 rupees. Now it is 50. So increase by what percent? Increase by 20 rupees. But ये 20 का increase किस पर हुआ? Obviously 50 पर. And to get percent value, multiply by 100. And 2 by 5 in terms of percentage is 40%. So your correct answer is 40. सर मेरे को ये समझ नहीं आया, ये 60 कहाँ से आया? बेटा 60 इन प्रीवियस एक्सपेंस कितना था? सर 50. इस पर कितना इंक्रीज किया गया? सर 30%. कुछ खा लिया क्या तुमने बेटा? देखो इधर. नहीं सर, एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 20%. 20%. सो 10% कितना होता है 50 का? सर 25. सॉरी सर 5. 5. सो 20% मीन्स 10 रुपीज बढ़ा ना. हाँ यस सर. इट मीन्स कितना हो गया? 60 हो गया. 60. सर एक और चीज, ये बेस में 50 क्यों लिया हमने सेविंग्स का जब हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं? बेटा 50 से 70 हो गया सेविंग. सो अच्छा, इंक्रीज 20 का किया है, बट किस पर किया है? 50 पे किया, ठीक है. So everyone, any doubt in this question? सर मुझे एक सर चीज पूछनी थी. एक्चुअली जो आपने परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बनाया था ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, हाँ. सो उसमें आपने बोला था ना वो कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स का एरिया परसेंटेज चेंज पे लग जाएगा. वो कौन Yes. सी शेप्स है? वो किस पर लग जाएगा? यस सर.
परसेंटेज चेंज इन सम ज्योमेट्रिकल शेप्स के एरिया का बताया था ना लाइक आप सर्कल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। क्यों लग जाएगा? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, यस सर। आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, चेंज केवल आर में बट है तो दो बार, इट मीन्स ये फॉर्मूला यूज होगा। इन स्क्वायर अगेन एरिया इज ए स्क्वायर, इट मीन्स ए इंटू ए, वही कंसेप्ट यूज हो रहा है। फॉर रेक्टेंगल एल इंटू बी, दो चेंजेस हैं, फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ कांस्टेंट है, बेस इंटू हाइट, इट मीन्स अगेन दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मतलब सर अगर कोई परसेंटेज चेंज होता है, कोई डायमेंशन चेंज होती है, तब हम ये यूज कर सकते हैं, आप ऐसा बोल रहे हो? बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म होना चाहिए। बट यही चीज अगर आपसे पेरीमीटर के रिस्पेक्ट में बोल दे, रेक्टेंगल के केस में आपसे हाँ ये कहते हैं कि पेरीमीटर में कितने परसेंट का चेंज हुआ, तो एक्चुअली पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, अभी ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा। सर, वो कोई एग्जांपल दे सकते हो आप ऊपर जो आपने समझाया है? एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं कि लाइक मैं कह दूं कि रेक्टेंगल का लेंथ 30% से इंक्रीज किया और ओके। ब्रेथ 20% से डिक्रीज किया। So how much percent change in this area? So it's 30 minus 20 plus 30 minus 20 divided by 100. So actually 10 minus 6, which is equal to 4%. It means 4% change in the area. ओके। And result positive है, it means 4% increase है। Otherwise आप इसको बेसिक से भी डील कर सकते हैं, like आपने लेंथ और ब्रेथ दोनों को 10 कंसीडर किया, in this position your area is 100. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% क्या लिया था फिगर? यस, 30% से लेंथ इंक्रीज किया, दिस इज 13। ब्रेथ को 20% से डिक्रीज किया, दिस वन इज 8, एंड 13 8 104। इनिशियल एरिया इज 100, नाउ इट इज 104, इट मींस इंक्रीज बाय 4%। ओके सर, वन लास्ट थिंग, एक्चुअली परसेंटेजेस की एक पहले क्लास भी अटेंड की थी जिसमें वी गॉट टू नो अबाउट पीसीजी मेथड, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी ग्राफ समथिंग, राइट? सो दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन ना, बिकॉज इसमें प्रोडक्ट चेंज होगा हमारा बिल्कुल, आफ्टर इंक्रीज एंड डिक्रीज। यस। ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू। सर जो ये क्वेश्चन है इसमें हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो ए प्लस बी वाला, किस क्वेश्चन में बेटा? ये पर्सन स्पेंट वाले में? बेटा अगर लगा सकते तो लगा देते ना अभी। मैंने यही डिस्कस किया कंप्लीटली इतनी देर में। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर सॉल्व करिए, एज इट इज सेम कंसेप्ट है। A person spent rupee 5,700 out of his income of rupee 8,550. If income increased by 19%, expense increased by 13%, find percentage change in his saving. For this question, income and expense दोनों given है, और डेटा इस बार क्रिटिकल, इट्स 19% for income and 13% for expense and both increase. So how much percent change in the saving? Devash, 50, I think 50 is wrong answer.
सर 31%। 31%. Yes. Correct answer for this question is 31. Very good. राजेश्वरी कैसे डील किया इसको? सर कैलकुलेटर से किया, मतलब 50% इंक्रीज मैंने पूरा फाइंड किया सर, 8550 का 50% इंक्रीज। वो तो समझ गया, बट अगर आप बेसिक अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो विदाउट एनी कैलकुलेटर आप इतना फास्ट कर ही नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। ये तो चीटिंग कर ली थी। अगर कैलकुलेटर नहीं होता तो फिर कैसे होता सॉल्व? अनुभव? बेसिक वाले से ही कर। उसमें तो दर्द है। देखिए, डिस्कस करते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, अगर आप सेम डेटा कंसीडर करते हैं तो फिर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज इजी अप्रोच क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन इजीली कैसे हो गया? क्योंकि आपको डेटा गिवन नहीं था, आपको सिर्फ रिलेशन गिवन था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आपने 100 के रेस्पेक्ट में डील कर लिया। फिलहाल आपको डेटा गिवन है, सो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली रेशियो इंपॉर्टेंट है। सो इनिशियली अगर आपने इनकम और एक्सपेंस का रेशियो कैलकुलेट किया, हार्डली 15 to 20 सेकेंड लगेंगे अगर आपका कैलकुलेशन वीक है उस सिचुएशन पर भी। दिस रेशियो इज 3:2। सो रेशियो मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इस डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, इट टेक सम टाइम। अदरवाइज अगर आपने ये रेशियो मेंटेन करते हुए डेटा पिक किया 300 and 200, सो योर सेविंग वैल्यू इज 100 रुपीज। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आपका फिगर 100 के मल्टीपल में है, तो कैलकुलेशन परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी पड़ेगा। अब देखिए, किसी कैलकुलेटर का कोई यूज नहीं है। इनकम इंक्रीज बाय 19%। 19% इट मीन्स ऑब्वियसली 57 रुपीज से इंक्रीज कर रहा है इनकम। एक्सपेंस इंक्रीज बाय 13%, इट मीन्स 26 रुपीज से एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है। 57 इनकम, 26 एक्सपेंस, इट मीन्स सेविंग में 31 का डिफरेंस आया। इनिशियली 100 था, इंक्रीज बाय 31, सो डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ गया, इट इज 31%। थ्रू दिस अप्रोच ये 30 to 40 सेकेंड में सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज अगर आप बेसिक को डेटा एज इट इज कंसीडर करेंगे, इट टेक्स एटलीस्ट मोर देन 2 मिनट। ओके, सो यही इंपॉर्टेंट है कि आपने एग्जाम में कैसे डील किया। So two chapters, first one is ratio percentage and second one is ratio। यहाँ पर देखिए रेशियो के कॉम्बिनेशन से जब आपने इसको सॉल्व किया तो इजीली ये सॉल्व। एनी डाउट? सर वन क्वेश्चन, ये जो 3:2 की रेशियो, अगर इसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है, इफ वी वांट टू टेक 3 एज अ न्यूमरेटर, तो हम उसको 3/2 लिखेंगे या फिर 3/5 लिखेंगे फ्रैक्शन? विद रिस्पेक्ट टू इनकम, किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं? मैं जस्ट रेशियो की बात कर रहा हूँ। देखिए, एनी टू नंबर्स विच आर इन रेशियो 3:2, so your A is 3 out of 5 and B is 2 out of 5, because करेक्ट। ratio is the part out of total। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। So guys, this is the end of the session। नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट ये जितना बेसिक कवर किया है इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एंड स्पेशली ये जो फ्रैक्शन वैल्यूज अपन डिस्कस करके चल रहे थे, जिसका यूज आपको आगे बहुत देखने को मिलेगा फॉर दिस वन, एटलीस्ट ये माइंड में सेट कर लीजिए, लर्न करके नहीं, प्रैक्टिस करके। राघव, आपको बहुत बार बोला और अभी तक आपको याद नहीं है ये। सर अब तो काफी लर्न हो गई। देखो तुम्हारा काफी कब तक रहेगा ये। ओके, सर सर नेक्स्ट एक क्लास में। चीज लाइक मेंटल कैलकुलेशन को थोड़ा तेज करने का कुछ बता दो, बिकॉज बहुत टाइम लग जाता है ऐसे मेंटली कैलकुलेट करने में। तो बेटा ये सिर्फ प्रैक्टिस से डेवलप होगा। अब डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। मेरा तो मजबूरी में हो रहा है, तुमको पेपर देना है, तुमने कितना किया ये इम्पोर्टेंट है। तो वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। अब ऑब्वियसली एक चीज को आप
कई बार ट्राई करेंगे तो स्पीड हर बार इंक्रीज करेगा। ठीक है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास पे आप इस कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा कोई डेटा डिस्कस करना चाहे तो करिएगा, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके ओके गाइस, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। Night, बाय sir. सर। Okay, sir.